Good afternoon, all of you, bete. Let's start the numericals of expenditure method, which we discussed in the previous lecture. So by now you know कि expenditure method से भी आपके पास पहली equation से क्या आता है, GDPMP. हम इकोनॉमी में जो सेक्टर्स हैं वो जो एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं उसको क्लासिफाई करते हैं into private final consumption expenditure, government final consumption expenditure, gross domestic capital formation and net exports में, right? उन सबको ऐड कर देते हैं, we get gross domestic product at market price, that is GDP-MP. After that, applying the golden rules, we get NDP-FC. So here is the question: calculate GDP-MP. You are given private final consumption expenditure as 1200 crore, government final consumption expenditure as 200, gross fixed capital formation 300, change in stock 400, imports 500, exports 600. ठीक, so we have to calculate GDP-MP. So beta, we know GDP-MP is the sum total of 4 components. First is private final consumption expenditure. Second is government final consumption expenditure. Third is gross domestic capital formation. We are given gross fixed capital formation. This is one component of gross domestic capital formation. Okay? So another component is change in stock. Change in stock को ऐड कर देंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में. चेंज इन स्टॉक क्या होता है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है. इन दोनों को ऐड कर दीजिए, आपके पास आ गया ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, राइट. देन फोर्थ कंपोनेंट इज नेट एक्सपोर्ट्स, which is exports minus imports. So plus 600 minus 500. Okay, so we get GDP-MP as a sum total of all these components. So this is 1400 plus 700, 2100 plus 100, 2200 करोड़. जो भी डिनोमिनेशन ऊपर दी है रुपीस करोड़ गिवन थी, तो मैंने रुपीस करोड़ लिख दिया है. ठीक है, ओके. फतेह बेटे, आप, मेरे को लगता है ऑफलाइन क्लास तो आपने अटेंड ही नहीं की है, आपकी लेक्चर शॉर्टेज हो जाएगी. So start attending your offline classes as well. Okay, especially those students who have their lecture shortage. Next question. Calculate GNPFC. इसमें हमने golden rule क्यों नहीं अप्लाई किए? क्योंकि हमारे पास GDP-MP as it is आ गया. So now we have to calculate GNPFC. Factor cost पे calculate करना है. हमें क्या given है? Net domestic fixed capital formation 350, closing stock 100, government final consumption expenditure sorry 200, net indirect taxes 40, opening stock as 60, consumption of fixed capital 50, net exports
-10, private final consumption expenditure 1500, imports 20, NIFA net factor income from abroad which is given in minus, right? ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए ये क्वेश्चन। अब बेटे कुछ चीजें जो है ना वो डुप्लीकेशन में गिवन होती है, सुपरफ्लुअस होती है, रिक्वायर्ड नहीं होती है, लेकिन फिर भी गिवन होती है। जैसे इस केस में नेट एक्सपोर्ट्स गिवन है और इंपोर्ट्स भी गिवन है, सो वी विल इग्नोर इंपोर्ट्स क्योंकि ये इंपोर्ट ऑलरेडी नेट एक्सपोर्ट्स में किया हुआ है, उसकी एडजस्टमेंट की हुई। व्हाट इज नेट एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एंड वी नीड नेट एक्सपोर्ट ओनली, वी डू नॉट नीड इंपोर्ट, सो जस्ट इग्नोर इट। क्लियर? So we are to calculate GNPFC, but हमारे पास जो इक्वेशन है, जो हम 4 कंपोनेंट्स को ऐड करके पाते हैं, हमारे पास आता है GDP MP। उसमें हमारा पहला कंपोनेंट होता है PFCE which is given to be 1500, ये ऐड कर दिया हमने। दूसरा कंपोनेंट हमारा होता है GFCE, ये देखो इधर given to be 200, ऐड कर दिया हमने। तीसरा कंपोनेंट होता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। हमें क्या गिवन है? नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। हमें चाहिए ग्रॉस, हमें गिवन है नेट, तो नेट में क्या ऐड करेंगे बेटे? तो ग्रॉस आ जाएगा, डेप्रिसिएशन, net plus depreciation is equal to gross. Here depreciation is consumption of fixed capital, this is depreciation, okay? So another thing, this is fixed capital formation, we need capital formation, ये उसका एक कंपोनेंट गिवन है। मैंने कहा था ना, 2 पहिए गाड़ी के, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा चेंज इन स्टॉक या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो ये एक ही पहिया है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट वाला, दूसरा पहिया ढूंढेंगे, वो क्या है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, नहीं गिवन। चेंज इन स्टॉक दूसरा नाम, नहीं गिवन। तीसरा नाम क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो आपने नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट यानी कि चेंज इन स्टॉक ऐड करना है, यानी क्लोजिंग ऐड करना है, ओपनिंग माइनस करना है, और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल यानी कि डेप्रिसिएशन उसको भी ऐड करना है। सो वी गॉट नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस CFC डेप्रिसिएशन, ये हमारा एक कंपोनेंट है, तीसरा वाला ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मैंने आपको बोला था कि 90% क्वेश्चंस में एडजस्टमेंट इसी कंपोनेंट की आएगी, ठीक है। लास्ट है हमारा नेट एक्सपोर्ट्स गिवन टू बी -10, तो प्लस -10। सो बस मैंने लिखा ही ऐसे है कि आप इसको ऐड कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो 1500, 1700, 2000, 2100, 2100 प्लस वाला पहले कर लेते हैं, 2150 और 2150 एंड 2200। 2200 में से 70 माइनस कर दिया 2170। एक मिनट दोबारा देखती हूँ मैं, सॉरी। 1700, दिस इज 2050, 21,050, 2200 minus 70, 2130, ठीक है। But this is GDP MP, we require GNPFC, हमें GNPFC चाहिए। हमारे पास क्या है?
GDPMP, ग्रॉस ग्रॉस, ठीक है। डोमेस्टिक है, नेशनल चाहिए तो नीफा ऐड कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मार्केट का प्राइस है, फैक्ट्री की कॉस्ट माइनस कर देंगे, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो दिस इज 2130। इसमें नीफा ऐड करते हैं, नीफा ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस ही होगा, पर हम लिखेंगे प्लस -30 माइनस NIT, तो NIT इज 40, तो ओवरऑल 70 माइनस हो जाएगा इसमें से। सो हमारे पास आया 21 and 2060, 2060 is GNPFC। किसी को कोई डाउट तो you can ask, very simple question, nothing much in the question, only the adjustment in investment is there. Once you have done, just give me a thumbs up, raise your thumb so that I can move further to the next question. इतनी लेट आ रहे हैं बच्चे। What happened, Kakshi? Why are you joining so late? Only 20 minutes left for the lecture and you're joining now. 15 minutes late. So we need to calculate GDPFC now. Gross domestic product at factor cost. Private final consumption expenditure 800. Net domestic capital formation 150. Change in stock 30. Net factor income from abroad minus 20. NIT, net indirect taxes 120. Gross fixed capital formation 450. Net exports minus 30. Consumption of fixed capital 50. ठीक है, we need to calculate GDPFC. So हम पहले GDPMP से ही चलेंगे, बेस ही बनाना है हमने सबसे पहले। तो पहला कंपोनेंट प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 800, दूसरा कंपोनेंट गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 450, तीसरा कंपोनेंट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, हमारे पास क्या है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें क्या ऐड करेंगे तो ये ग्रॉस हो जाएगा डेप्रिसिएशन, CFC गिवन है आपको, डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बोथ आर सेम। सो 150 एंड 50 ये दोनों हमारे पास मिलके क्या देंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, चौथा कंपोनेंट है नेट एक्सपोर्ट्स, वो माइनस में गिवन है तो हम माइनस लिख देते हैं। सो ये हमारा आ गया 800, 1200, 1300, 1400, 1450 minus 30, 1420. We need to calculate GDPFC, which is market price minus NIT. ये मार्केट प्राइस पे है, हमें फैक्ट्री की कॉस्ट चाहिए तो हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे। 1420 यानी GDPMP में से NIT यानी कि 120 माइनस कर दो, हमारे पास आ गया 1300 रुपीस, 1300 करोड़
as GDPFC. Give me a thumbs up once you have done it. Let's move further. Then calculate gross fixed capital formation. आपको नेशनल इनकम का कोई वो नहीं निकालना है एग्रीगेट, आपको इसका कंपोनेंट निकालना है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. तो क्या गिवन है आपको? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू बी 1000, gross fixed capital formation to be 500, net exports to be -50, NIFA net factor income from abroad to be 20, GDP MP to be 2500, opening stock 300, closing stock 200. राइट. हमें क्या कैलकुलेट करना है? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. तो क्योंकि हमें एक एग्रीगेट ऑलरेडी गिवन है, उसका हमें कंपोनेंट निकालना है, तो वी कैन इजीली डू दैट. ठीक है, हमारे पास जीडीपी एमपी है, हम जीडीपी एमपी की इक्वेशन बना देते हैं. वी नो इट इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. बट यहाँ पे हमें ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन निकालनी है. इसका मतलब इसका एक कंपोनेंट हमें गिवन होगा, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स. अब whatever is given, we will put those values. GDP MP as 2500, PFCE as 1000, GFCE as 500, GDFCF we have to find out. So we will write it as it is, plus change in stock, that is closing minus opening, bete 200 minus 300, so minus 100 आ गया. And last component net exports minus 50. तो इधर जो प्लस हो रहे हैं वो उधर जाके माइनस हो जाएंगे, जो इधर माइनस हो रहे हैं उधर जाकर प्लस हो जाएंगे. ठीक है, सो ऐसे कर लेते हैं इसको. 1500, इसमें से 100 चले गए, 1400, 15 चले गए, 1350. सो 2500 minus 1350 is your gross domestic fixed capital formation. It comes out to be 1150. ठीक है, रुपीज 1150 is your gross domestic fixed capital